Hello, good morning, student. Good morning, sir. Okay, let's continue. Okay, so today we have to see the new topic, that is Excel. Okay, already we have seen the layout of the Excel in the last lecture. So we'll continue this part. So I'm sharing your screen again. First of all, चलो again welcome Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West, TYB Com 5th Sem.
Subject computer system and applications. Topic introduction to Excel presented by Assistant Professor Bipin PYT. So we'll continue this part. Last time I already show you the screen layout of the Excel, and after that we have to see the functions, some tools, and then after that we have to see the commands related Excel. Okay, what are the options available in the ribbon, and inside there what are the commands options are available. Okay, let's continue. Hmm. Yeah, it is opened. Yeah, I already sent you this Excel PDF file, and this is a layout I already last time explained. Now we have to continue with the data, numbers, text. Already explained about the data, number, text, date and time. क्या होता है? After the formatting part, and then operators. Okay, and then ribbons. यहाँ तक complete हुआ था. We now important thing cell formatting and all that. Listen about carefully about that. Late join होते हैं. Okay, anyway. So I start the Excel. How to start the Excel? Click on Start, All Program, Microsoft Office, and then in Microsoft Office, we have to go on Microsoft Excel 2010, or now it is Excel 2016, whatever. It has given in your book, it is given versions is Excel 2010. Fine. So I already told about the layout, title bar, then your ribbons, home tab, tabs, insert tab. These are all the ribbons. In the home tab, we can see the ribbons, clipboard, font, alignment, number, style, cells. This is the options over there. Okay. These are the options, and inside that these group options, we can see the many commands. That is alignment, left alignment. There the left, center, right, bottom alignment, top center. Sorry, top left, top right, top bottom left. Sorry, bottom right and center. This is the layout. तो आपके सेल के लिए फॉर्मेटिंग होती है. तो व्हाट इज सेल फॉर्मेटिंग वो बताना है आज. तो पहले सेल मतलब क्या? इंटरसेक्शन ऑफ द रोज. कितने रोज कॉलम्स लास्ट टाइम भी बताए थे आप लोग को. 10,48,576 what your rows, that is control down आप करके आप देख सकते हो नीचे 10,48,576. उसके बाद how many columns, XFD. XFD मतलब आपका 16,384 columns are there, right? आपको ये लास्ट टाइम बताया था, बराबर है ना? Yes student, hello. Yes, sir. Okay. So that part I have to continue. Now cell. What is cell? Intersections of a row and a column. That is a one box. That is a black color का जो cell pointer दिखा रहा है वो एक cell है. Okay. अगर बहुत सारे cell बताते हैं तो A12 like that we are selecting. This is cell range. A12 G6. देखो हम लोगों ने select किया A12 G6. That is cell रेंज. तो उसको लिखते वक्त A1:G6 सेपरेटर करना है तो A1, B1, या D6, like that we are giving the separator. Each and every formulas we are using. That time we require the cell address. हम लोग ये सेल एड्रेस यहाँ ऊपर इंडिकेट करता है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. See that now I4 H5 ऊपर फॉर्मूला बार के बाजू में आपको एक नेम बॉक्स दिया हुआ है, वहां पे अगर आपको डायरेक्टली भी जाना है तो यू कैन राइट ओवर देयर डायरेक्टली. सपोज I20 तो आप डायरेक्टली एंटर करोगे तो आप I20 के इधर आपका सेल पॉइंटर चला जाए. और इंडिविजुअली सेल फॉर्मेटिंग होगी. व्हाट डू मीन दैट? बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे 11 साइज है, लेकिन अगर मैंने सिलेक्ट किया सेल को और यहाँ पे साइज दिया हम लोगों ने 24, तो वी कैन सी दैट कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जितने सेल आपने सिलेक्ट किए थे उसका साइज 24.
बट ये रोज और कॉलम वाइज ग्रिड लाइंस में होने की वजह से, ग्रिड व्यूज में होने की वजह से वी आर गेटिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ दैट रो यहाँ पे भी दिखाई दे रही। लेकिन फॉन्ट स्टाइल अलग इंडिविजुअली कर सकते हैं। सपोज एरियल ब्लैक किया तो इसी सेल को एरियल ब्लैक हो। अलाइनमेंट अगर हम लोग ने सेंटर अलाइनमेंट, इसी सेल को सेंटर अलाइनमेंट देखना है तो हम लोग देखते हैं, चलो लिखते हैं, देखो नाउ वी कैन राइट वो सेंटर अलाइनमेंट में आ रहा है बिकॉज ऑलरेडी वी आर गिवन द फॉर्मेटिंग। सिलेक्ट करके हम लोग ने फॉर्मेटिंग क्या दिया है, एरियल ब्लैक 24 एंड सेंटर अलाइनमेंट। ओके, सपोज हम लोग ने इटालिक किया, वो इटालिक होगा, मतलब वो सेल सिलेक्ट करके आप फॉर्मेटिंग देना होता है। सो दिस इज सेल फॉर्मेटिंग। हम लोग किसी भी इसमें सेल फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि नंबर फॉर्मेटिंग होती है। कि हम लोग जब कोई नंबर लिखते हैं, नॉर्मल नंबर, सपोज हम लोग ने नॉर्मल नंबर, अभी मैं एक फॉर्मेटिंग क्लियर करता हूँ। कैसे क्लियर करता हूँ, देखो कंट्रोल ऑल क्लियर, क्लियर ऑल मतलब पूरा डेटा क्लियर करना। राइट साइड में आपका होम टैब में टूल्स है, आपके वो टूल्स में कौन सा टूल्स है आपका, एडिटिंग टूल्स। दैट एडिटिंग टूल्स में आपको एडिटिंग ग्रुप ऑप्शंस के अंदर क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक है। अगर मैं क्लियर फॉर्मेट करता हूँ तो फॉर्मेटिंग क्लियर हो। अगर क्लियर ऑल करता हूँ या क्लियर कंटेंट करता हूँ तो पूरे कंटेंट ओनली क्लियर हो गए, फॉर्मेटिंग क्लियर। और क्लियर ऑल करता हूँ तो फॉर्मेटिंग और कंटेंट दोनों क्लियर हो। ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ अभी यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखो एंटर दिस, ये डेटा लिखना है और हम लोग को फॉर्मेटिंग चेंज करना है। तो आई जस्ट राइट दैट डेटा 5,000, 10,000, 1 लाख जो भी है हम लोग लिखेंगे 17.5, ओके, देन 100.75, फाइन, देन 200.666, after that 200.333, देन -25, नेगेटिव वैल्यूज भी लिख सकते हो। ओके, अभी इसी को फॉर्मेटिंग चेंज करना है। ओके, अलग अलग। सपोज हम लोग ने इस तरह डेटा लिया है और हम लोग इसी तरह रखते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे कर एक एक फॉर्मेट। अगर फर्स्ट यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया, गो ऑन फॉर्मेट, फॉर्मेट सेल्स, कंट्रोल 1 उसका शॉर्टकट किए, कंट्रोल+1, कंट्रोल 1 होल्ड कंट्रोल किया एंड 1। फॉर्मेट सेल के अंदर जाने के बाद एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हम लोग को सेल की फॉर्मेटिंग करने अलाउड है। Now there is a number formatting, alignment formatting, font formatting, border, fill color and protection format। ये सारी चीजें एक साथ जो हमारे रिबिन्स में यहाँ पे दी हुई है, वही सारी फॉर्मेटिंग उन्होंने एक साथ ग्रुप में दी हुई है। नंबर फॉर्मेटिंग, सबसे पहले अभी हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं। तो जनरली नंबर इज ऑन द राइट अलाइन, नंबर हमेशा राइट अलाइनमेंट में चला जाता है, लेकिन उसको डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो अगर हम लोगों ने नंबर पॉइंट ले लिया तो इट इंक्लूड्स द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे वी कैन इंक्रीज द डेसिमल पॉइंट, जितने हम लोग को डेसिमल चाहिए उतने हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं और उतने डेसिमल्स हम लोग दे सकते हैं। ओके, देखो यहाँ 2 डेसिमल्स तो 2 डेसिमल दिखाई दे। नेक्स्ट, सपोज हम लोग को सेपरेटर के साथ में चाहिए, आई सिलेक्ट दैट 1000, वन फॉर्मेट, फॉर्मेट सेल, नंबर में ही सेपरेटर, यूज द सेपरेटर। आप कितने डेसिमल देना है उतना दे दो, लेकिन सेपरेटर 1000 को 1000 का सेपरेटर आए। अगर हम लोगों ने 1 लाख या 10,000 किया हुआ है तो उसके लिए सेपरेटर देखो ना, नंबर, उसके लिए 2 सेपरेटर आ गए, क्योंकि 1 कॉमा, सेपरेटर मतलब कॉमा, दिखाई दे रहा है आपको? Yes, student. Hello. Yes, sir. Yeah. So this is separator. After that, they are saying about that कि डेसिमल पॉइंट कम ज्यादा करना है, तो हम लोग वहां पे ही क्लिक करके 17.5 को क्लिक कर रहे हैं और उसमें नंबर फॉर्मेटिंग में जितना चाहिए उतना डेसिमल इंक्रीमेंट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू। नीचे एग्जांपल भी दिए है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा चाहिए वैसे, देन वी कैन गिव द डेसिमल। ओके, देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे अगर डेसिमल कम करना है, सपोज आपने लिखा है 200.666 एंड यू वांट टू डिक्रीमेंट द डेसिमल पॉइंट, तो आप क्या करोगे, अगर 2 डेसिमल करते हो तो उसका राउंडेड वैल्यू आ जाता है 6.66। अगर 5 के ऊपर जाता है तो उसका राउंडेड हुआ 67। सो 200.67 अगर 2 डेसिमल दिए। अगर हम लोग ने 1 डेसिमल लिया तो हम लोग का जाएगा 7। ठीक है, क्लियर, फाइन। अगर 200.333 को करते हैं डेसिमल,
1 पॉइंट, तो उसका चेंजेस नहीं आ रहा है क्योंकि उसको पॉइंट, आपको पता है पॉइंट के बाद अगर 5 पॉइंट से ज्यादा होगा तो ही वो डेसिमल पॉइंट राउंडेड करके आपको डेसिमल पॉइंट इंक्रीमेंट जितना डेसिमल होगा। तो ये मैथ्स है, तो मैथ्स की तरह वो ऑटोमेटिकली जितना डेसिमल आप कम ज्यादा करोगे उसके हिसाब से आपको डिस्प्ले। नेक्स्ट, ओनली पॉजिटिव नंबर अगर आपको चाहिए तो आप नेगेटिव नंबर को आपको क्लिक करके यहाँ पे नंबर में, यहाँ देखो ओनली पॉजिटिव ब्रैकेट में, सॉरी करेंसी नहीं है, नंबर, यस ओनली पॉजिटिव, या ओनली पॉजिटिव ले रहे हैं, ओके कर रहे हैं, तो ओनली पॉजिटिव नंबर्स भी आपको डिस्प्ले होगा विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल, दैट डेसिमल। क्लियर? हेलो, यस स्टूडेंट, Yes, sir. दैट इज Yes, sir. नंबर फॉर्मेटिंग। इसी तरह हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग के साथ साथ, देखो याद दिया हुआ नंबर फॉर्मेटिंग के साथ करेंसी फॉर्मेटिंग। अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ, ओके, और इसको करेंसी देना है, तो गो ऑन फॉर्मेट, फॉर्मेट सेल में करेंसी दोगे तो करेंसी में रुपीज, आप देख सकते हो रुपीज कहाँ पे आ गया है, आपके जो भी नंबर लिखा था उसके बाजू में विथ सेपरेटर आ। लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग ले लिया तो अकाउंट में रुपीज कहाँ पे दिखाई देता है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आ। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, करेंसी के बाद अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग के बाद उन्होंने डेट फॉर्मेट। सपोज मैंने डेट फॉर्मेट लिखा, नाउ इट इज 25, सॉरी 21, टुडेज डेट 21-11-2020, ओके, ये डेट है। सपोज आई गो ऑन फॉर्मेट, फॉर्मेट सेल्स एंड टेक इट डेट। डेट में बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, अगर मैंने ये फॉर्मेट लिया, हम लोगों ने लिखा हुआ डेट है DD-MM-YY, बट फॉर्मेट करने के बाद उन्होंने जो फॉर्मेट सिलेक्ट किया उसके हिसाब से 21 नवंबर 2020, तो वो कैसे दिखाई दे रहा है, फुल लिख के आ रहा है विद डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में जैसे आपने सिलेक्ट किया। अगर हम लोगों ने इस तरह सिलेक्ट किया, पहले ईयर आ रहा है, फिर मंथ, फिर डेट आ रहा है, तो फॉर्मेट कस्टम वाइज भी कर सकते हैं डेट का। अगर आप कस्टम में जाते हैं तो कस्टम में भी हम लोग DD-MMM-YYY करोगे तो आपका कस्टम वाइज फॉर्मेट रेडी होगा एक्सेल। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. Sir. एक्सेल। सो दैट इज योर 21 नवंबर डेट फॉर्मेट का फॉर्मेटिंग सेल हो रहा है। वैसे ही टाइमिंग, टाइमिंग अगर आप लिखते हो, सपोज नाउ इट इज टाइमिंग इज 9:16, ओके, और उस सेल को सिलेक्ट करके आप फॉर्मेट देते हो, तो फॉर्मेट सेल में आपको टाइम, तो यहाँ टाइम फॉर्मेट आते हैं। अगर हम लोग ने AM PM वाला फॉर्मेट ले लिया, ओके किया, तो आप देख सकते हो 9:16 AM दिखा रहे हैं अभी। नाउ इट इज द टाइम अकॉर्डिंग टू 9:16 इट इज AM, ओके। बट अगर हम लोगों ने इसको फॉर्मेटिंग, हम लोग ने अगर सपोज नाउ में टाइमिंग लिखता हूँ 1:05, ओके, तभी 1:05 क्या होता है देखते हैं। फॉर्मेट सेल के अंदर, टाइम के अंदर हम लोग फॉर्मेट लिए AM PM, तो आपको वो AM दिखा रहा है, बराबर है, AM दिखा रहा है। क्यों? तो AM मतलब उनका सुबह का टाइम। लेकिन जब आप 13 लिखते हो, 13:05, और अगर फॉर्मेटिंग करते हो तो आपको दिखाई देगा PM। क्या दिखाई देगा? PM। टाइम, टाइम में जा रहा हूँ वापिस, वो AM PM ले रहा हूँ, आपको 1.5 दिखा रहा था, लेकिन उसके आगे क्या आ गया? PM आ गया, बिकॉज इट इज इन द, आपने लिखा हुआ था 13 और 13 के हिसाब से आपका टाइमिंग PM था। ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग सेल उन्होंने दिया हुआ है। कस्टमाइज करते हो तो आप कस्टमाइज में भी HH:MM:SS इसके अंदर दे सकते हैं, AM PM, और उसी तरह वो फॉर्मेटिंग चेंज हो। ओके, क्लियर? टाइम, चलो टाइम के बाद आपका क्या आता है? नेक्स्ट, हेलो, ओके, परसेंटेज। नेक्स्ट वन है परसेंटेज। परसेंटेज में आपने अगर 25 लिखा एंड देन आफ्टर दैट यू गो ऑन फॉर्मेट एंड फॉर्मेट से, तो यहाँ पे परसेंटेज में उसको इंटू 100 हो जाता है। इंटू 100 में आंसर मिलेगा 25 इंटू 100, तो 2500 दिखाएगा, दैट मीन्स 2500%। बट ऐसा करने से अच्छा आपको फॉर्मेटिंग में क्या करना है, वो सेल सिलेक्ट करने के और पहले
फॉर्मेट सेल में परसेंटेज फॉर्मेटिंग करके लेने का और देन यू टाइप द वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली जितना परसेंटेज आपने दिया उतना परसेंटेज विथ सिंबल परसेंटेज के साथ में दिखाई देगा। इज इट क्लियर? हेलो, यस, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट वन, फ्रैक्शन वैल्यू। अगर हम लोगों ने 0.25 लिया है, अभी परसेंटेज आ रहा है लेकिन अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, फॉर्मेट सेल में जाके फ्रैक्शन ले रहा हूँ, तो फ्रैक्शन का आंसर क्या मिला? 1/4। ओके, अगर 1.75 लिया तो फ्रैक्शन का आंसर, अभी इधर परसेंटेज क्योंकि पहले फॉर्मेटिंग परसेंटेज, अभी चेंज कर रहा हूँ, तो सिलेक्ट दैट सेल, गो ऑन फॉर्मेट सेल एंड चेंज द फ्रैक्शंस। व्हाट इज द फ्रैक्शंस ओवर देयर? ओके सॉरी, फ्रैक्शंस नहीं, फ्रैक्शंस। और कहाँ पे हमारा फ्रैक्शन है? 1/4 अप टू 1 डिजिट, अप टू 1 याद दिया हुआ देखो, हाफ एट द होल्स 4 8 8 16, अलग अलग आप लोग को दिखते हैं, अप टू 1 डिजिट तो 1 डिजिट 4 8, जैसे आप करोगे वन नोट वैसा फॉर्मेटिंग उधर दिखाई देगा। यहाँ पे क्लियर ऑल करता हूँ और फिर लिखता हूँ 1.75। नहीं, ये क्लियर फॉर्मेट नहीं हुआ, इसको फॉर्मेट क्लियर करते, क्लियर फॉर्मेट। देखो अभी 0.175 आ गया। अभी हम लोग जा रहे हैं फॉर्मेट सेल में, उसके अंदर फ्रैक्शन में जा रहे हैं, तो 2 डिजिट्स, यहाँ 2 डिजिट में 1/57 दे रहा है, गलत हो रहा है, रुको एक, 1.25, या नाउ इट इज राइट। नाउ गो ऑन फॉर्मेट सेल, उसके बाद जा रहे हैं हम लोग फ्रैक्शन में, तो आपको देखो अभी क्या आंसर आ रहा है? 1 पूरा वैल्यू और 1/4 मतलब 1.25, 1 और 25%। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, टेक्स्ट वैल्यू। अभी टेक्स्ट वैल्यू नॉर्मली जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में, ओके, टेक्स्ट लिखते हो लेफ्ट। लेकिन अगर जब टेक्स्ट वैल्यू कंटिन्यू ऑन द डाउन साइड ऑफ द रोज हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोगों ने बी लिखा तो इट विल रिपीट, इसको बोलते हैं फिल सीरीज, और ये सीरीज फिल करना है। अभी मैं फिल सीरीज के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, फिल सीरीज होती क्या है। सपोज अगर नए नए वर्कशीट में जा रहा हूँ, यहाँ पे सपोज मुझे रोल नंबर 1 और 2 नंबर चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ 1 2। अभी मैं दोनों सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन फिल सीरीज में ड्रैग कर रहा हूँ। यू कैन सी दैट कि हम लोग को वो सीरीज कंटिन्यू आ रही है। ओके, इसमें कितने का गैप है? 1 का गैप है, वो 1 का गैप कंटिन्यू। सो मैंने लिखा 1 and 4 और 1 and 4 को सिलेक्ट किया, तो फिल सीरीज अभी क्या आएगा? 1 4 के बाद क्या आएगा? 7 10 13 16। अब देख सकते हैं, सपोज हम लोगों ने ऑड नंबर लिखा 1 and 3, तो आप देख सकते हैं उसमें कैसे में गैप कितने का है? 1 and 2 का गैप है, 1 3 5 7। दिस इज कॉल्ड सीरीज। अगर हम लोगों ने जनवरी लिखा, ओके, और उसको ड्रैग किया, तो ऑटोमेटिकली जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल और दिसंबर खत्म होने के बाद वापस जनवरी कंटिन्यू। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? मंथ का फिल सीरीज कर रहा है। सपोज हम लोग को डे सीरीज, अगर मैंने लिखा मंडे, ओके, तो मंडे के बाद अगर फिल सीरीज हम लोग ड्रैग करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ मंडे टू संडे आ रहा है, फिर संडे के बाद अगर कंटिन्यू करते हैं तो मंडे ट्यूसडे वापस। दैट इज कॉल्ड फिल सीरीज। ओके, वैसे ही डेट एंड टाइम का भी होता है। अगर हम लोग ने आज का डेट लिखा, ओके, अभी मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखो ऑटोमेटिकली 21 के बाद 22 23 24 रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं फिल से। वैसे ही अगर मैं नाम लिखता हूँ और नाम को ड्रैग करता हूँ, तो मेरा वो नाम कंटिन्यू मुझे आ रहा है। उसी तरह जब मैं बी लिखता हूँ तो वो रिपीट, आपको बी के बाद आई है, लेकिन आई के अलावा अगर मैंने ए लिखा तो वो चेंज हो गया। आए समझ में? बस। तो वो चेंज हो गया। इज इट क्लियर? हेलो, हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ऐसे टेक्स्ट सीरीज होती है, तो हम लोग ने टेक्स्ट सीरीज या नंबर सीरीज ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम लोग को दिखाया। तो स्पेशल फॉर्मेट होते हैं, जिप कोड, पिन कोड, कस्टम वाइज फॉर्मेट होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग को सेल फॉर्मेटिंग में आती है। क्लियर? चलो अभी आगे जाते हैं। उन्होंने दिया हुआ है, बाद में आपके बुक में भी दिया है, हाउ टू डू इट दिस वन। अभी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मेटिंग बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कैसे करते हैं वो बता। उसके बाद आपको शिफ्ट वगैरह वो अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले अगर मैंने सिलेक्ट किया, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ,
Now I go on format, cell, number. Alignment बाद में बताता हूँ, पहले font. Font के अंदर एरियल ब्लैक, ये क्या किया मैंने, फॉन्ट स्टाइल चॉइस किया, फिर रेगुलर, बोल्ड, इटालिक जो भी चाहिए, तो बस एरियल लिया तो बोल्ड, ओके। देन साइजिंग, एक साथ साइजिंग हम लोग ने, इफेक्ट्स, अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन, सिंगल, डबल, व्हाटएवर अंडरलाइन चॉइस किया तो स्ट्राइक थ्रू, अगर वन लाइन गो थ्रू द टेक्स्ट करना है तो स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट के ऊपर अगर मुझे दिखाना है अबाउट द टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट, बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट दिखाना है तो सबस्क्रिप्ट। सो दैट इज द ऑप्शंस आर ऑल, इवन कलर्स, यू कैन चेंज द कलर्स, जो भी कलर आपको चाहिए वो चॉइस करके आप ले सकते हो। ओके किया तो वो आप टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी आपने सेल सिलेक्ट किया था उसको फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। दैट इज अ सेल के लिए फॉन्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट स्टाइल, साइज, अंडरलाइन, कलर, इफेक्ट्स, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। गॉट इट? सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट तो आपको पता है, जैसे 4 th ऊपर जाता है, बिलो h2o 2 नीचे आता है, उसी तरह वर्ड में जैसे फॉर्मेटिंग है वैसे ही फॉर्मेट। अभी इंपॉर्टेंट थिंग, अलाइनमेंट, सी दैट नाउ, अलाइन, फॉर्मेट, अलाइन। सब वो रैप टेक्स्ट कर रहा हूँ, ये मेरा नाम में यहाँ पे लिख रहा, विपिन प्रकाश, वही, ये मैंने पूरा नाम लिखा लेकिन वो कॉलम में एडजस्ट नहीं हो, राइट? सो मैं जा रहा हूँ सिलेक्ट दैट सेल एंड गो ऑन फॉर्मेट एंड फॉर्मेट सेल। हम लोग ने फॉन्ट चेंज किया, साइज चेंज किया, कलर चेंज किया, अगर हम लोग ने ये सब किया, और उसके बाद ओके, उसके बाद अलाइनमेंट, और अब हमने लिखा व्रैप टेक्स्ट, यहाँ पे अलाइनमेंट दिया हुआ है हॉरिजॉन्टली। चला सेल में 9 तरह के फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट हो सकते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, बॉटम राइट, ओके। आफ्टर दैट अगेन सेम, सेंटर, सेंटर में आएगा, मतलब 9 बॉक्सेस, आप 9 बॉक्सेस के अलाइनमेंट में कर सकते हैं। यहाँ हॉरिजॉन्टल में दिया है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, हॉरिजॉन्टली, जस्टिफाई वगैरह। अगेन वर्टिकल में भी दिया है, सेंटर, टॉप, जस्टिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट अगर हम लोग करते हैं तो रैप टेक्स्ट में क्या होता है, कॉलम में टेक्स्ट आपको एडजस्ट नहीं हो रही, कॉलम का विड्थ ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो टेक्स्ट क्या किए उसने, रैप करके रो का हाइट बढ़ गया और आपको वो टेक्स्ट नीचे नीचे आए, इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। जैसे कॉलम का विड्थ बढ़ते जाएगा वैसे वो एडजस्ट कर देगा। अगर हम लोगों ने कॉलम का विड्थ बढ़ाया वैसे वो एडजस्ट, कॉलम का विड्थ कम हो गया वैसे वो रैप टेक्स्ट हो रही। अगर हम लोगों ने रैप टेक्स्ट ऑप्शन नहीं लिया होता तो क्या होता था, अगर हम लोगों ने रैप टेक्स्ट नहीं लिया तो आप देख सकते हो वो जो भी टेक्स्ट लिखा है आपको दिखाई क्या दे रहा है, वो जी की बदले एच कॉलम में आपका टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में एच में कुछ भी नहीं है, आप एंट्री बार में देख सकते हो वो जी में ही है, जस्ट दिखाई दे रहा है। अगर एच में कुछ वैल्यू लिखोगे तो वो जी का वैल्यू हाइडन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग अलाइनमेंट लेते हैं, फॉर्मेट रैप टेक्स्ट या अदरवाइज स्ट्रिंग टू फिट। स्ट्रिंग टू फिट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉन्ट की साइज कम हो जाएगी, वो रैप नहीं होगा, इट जस्ट एडजस्ट द सेल टेक्स्ट इन द वन सेल, मतलब आपको जो भी सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा है वो वन सेल में फिट होगा, फिट मतलब वो टेक्स्ट के अंदर दिखाई देगा, फॉन्ट साइज डिक्रीमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड shrink to fit, ऑप्शन इज there, shrink to fit। उसके बाद मर्ज सेल, अगर मुझे ये टेक्स्ट 2-3 कॉलम के अंदर एक साथ, सपोज ये मैं 4 कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट सेल में जा रहा हूँ, मर्ज सेल कर रहा हूँ, shrink to fit निकाल दिया और ओके किया, तो यस ओके किया तो आप देख सकते हो 4 कॉलम का एक कॉलम बना दिया, रो तो वही है लेकिन वो G1 H1 I1 J1 इट इज वन। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। नेक्स्ट थिंग, आपको अगर टेक्स्ट को थोड़ा सा डिग्री में आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है तो वी कैन चेंज दैट 45 डिग्री, 43 डिग्री। तो आपको टेक्स्ट देखो, मंडे, ट्यूसडे, मंडे देखो ऐसे क्रॉस में आना, इट इज इन डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, जैसे आपको चाहिए वैसे डिग्री में आप उसको चेंज कर सकते हो। ओके अगर टेक्स्ट को सीधा करना है, एकदम से सीधा लिखना है, तो आप ये ओरिएंटेशन लेके एक के नीचे 1-1 कैरेक्टर ड्रॉप डाउन होते हुए दिखाई देंगे, उसको भी हम लोग ओरिएंटेशन, दिस वाज द ओरिएंटेशन, डिग्री वाइज चेंज कर, ये सारी चीज।
इवन इंडेंशन, अभी इंडेंशन क्या होता है, जैसे अलाइनमेंट में हमारा इंडेंशन होता है, मार्जिन छोड़ते हैं ना मार्जिन वर्ड में, वैसे ही हम लोग मार्जिन छोड़ सकते हैं टेक्स्ट के लिए। अगर हम लोग को वो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है तो वो थोड़ा टेक्स्ट का मार्जिन छोड़ के आए, टॉप बॉटम लेफ्ट जैसे चाहिए वो मार्जिन, यहाँ पे भी उसका इंडेंशन पार्ट दिया हुआ, ये इंडेंशन, इंक्रीज इंडेंशन और डिक्रीज इंडेंशन। ओके, स्पेसेस, मार्जिन के लिए कितना स्पेस छोड़ना है वो, जैसे ये टेक्स्ट है तो हम लोग को थोड़ा सा देखो मार्जिन से हम लोग छोड़ रहे हैं, उतना स्पेस कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन इंडेंशन। तो ये सारी चीजें हमारी अलाइनमेंट में है। ओके, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट कंट्रोल, ब्रैक टेक्स्ट, स्ट्रिंग टू फिट, मर्ज सेल, इंडेंशन एंड ओरिएंटेशन। अभी आ गया बॉर्डर। सपोज आपने ये सेल सिलेक्ट है, ये बॉर्डर प्रिंट आउट में नहीं दिखाई देगा, अगर मैंने प्रिंट कमांड दे दिया तो आपको प्रिंट आउट में वो बॉर्डर दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर आपको बॉर्डर दिखाना है तो यू कैन सिलेक्ट दैट सेल, गो ऑन फॉर्मेट सेल, उसके अंदर बॉर्डर, वहां पे भी इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड मतलब उसके अंदर, अंदर हम लोग क्या चाहिए, और आउटलाइन बॉर्डर, और दोनों बॉर्डर अगर हम लोग देते, उसमें भी आप स्टाइल ले सकते हो, डार्क, डबल, डॉटेड डॉटेड, कलर भी ले सकते हो, जो भी कलर चाहिए आप कलर लेके, फिर इनसाइड आउटसाइड जो भी आप क्लिक करोगे, या नन, आउटलाइन और इनसाइड, ऐसे ऑप्शन है। ओके करोगे तो वहां पे वो बॉर्डर दिखाई देगी, और जब आप प्रिंट करोगे तो वो बॉर्डर प्रिंट आउट भी होगी। इज इट क्लियर? हेलो, यस, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दैट इज अ बॉर्डर फॉर्मेटिंग। यहाँ कोई बॉर्डर निकालना है, आप सिलेक्ट करके उसके अबाव साइड की बॉर्डर निकालने, तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए, अबाव बॉर्डर निकालना है, लेफ्ट साइड का बॉर्डर निकालना है, तो बटन्स दिए हुए, राइट साइड का बॉर्डर निकालना है, सेंटर बॉर्डर निकालना है, तो आप जस्ट क्लिक करोगे वो बॉर्डर हिडन हो जाएगा, और वो उतना वैसे ही आपको सेल फॉर्मेटिंग दिख नेक्स्ट वन, फिल कलर। अगर आपको सेल के बैकग्राउंड में कुछ कलर प्रेस करना है तो आप वैसे आप कलर फिल कलर कर सकते हैं, तो आपको बैकग्राउंड में कलर आए, अब से कोई भी कलर आप दे सकते हो। फॉर्मेट सेल में या फिल कलर है, फिल इफेक्ट्स है, मोर कलर है, वो मोर कलर में जाके भी आपको जैसे कलर आपको चाहिए वैसे कलर आप ओके करके वहां दिखा सकते बैकग्राउंड। ओके, दैट इज फिल कलर। एंड प्रोटेक्शन, लास्ट पॉइंट है फॉर्मेट सेल में, प्रोटेक्शन दैट इज हिडन। अगर कोई टेक्स्ट हिडन करने, लॉक करनी है, आपको पता होगा प्रोटेक्ट शीट्स करके ऑप्शंस होता है। ओके, कहाँ पे होता है मैं बता दूं, डेटा में नहीं, पेज ले आऊंगा, एक मिनट, गिव्स रिव्यू, या रिव्यू के अंदर, रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक या प्रोटेक्ट वर्कशीट ऑप्शन है, उसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने पासवर्ड सेट किया, ओके किया, यहाँ ऑप्शन से अलग अलग किस तरह का आपका प्रोटेक्शन चाहिए, ओके करोगे और वो पासवर्ड रिपीट करोगे, ओके, ओके करोगे, अभी मैं कुछ भी चेंजेस नहीं अलाउड नहीं है, कुछ भी फॉर्मेटिंग अलाउड नहीं, देखो वो अनप्रोटेक्टेड शीट बता रहा है, उसको वापस मुझे अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और पासवर्ड दिया हुआ ABC, जब तक वो पासवर्ड नहीं देता हूँ तब तक मेरा अनप्रोटेक्ट नहीं, अभी चेंजेस कर सकता हूँ। दिख रहा है, समझ में है? कहाँ पे, रिव्यू के अंदर प्रोटेक्ट शीट्स, आप पासवर्ड दोगे तो वो पासवर्ड सेट करेगा, और पासवर्ड एक बार सेट कर लिया तो आप कोई भी सेल के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हो, उसको वापस रिव्यू के अंदर अनप्रोटेक्ट करोगे तो पासवर्ड पूछेगा, और पासवर्ड इज करेक्ट, then only we can make the changes over there. Okay, this is the way protection, इसलिए वो प्रोटेक्शन लॉक करके दिया हुआ है, और वो प्रोटेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। पूरा वर्कबुक प्रोटेक्ट कर सकते हो, पूरा वर्कशीट प्रोटेक्ट कर सकते हो। वर्कबुक मतलब एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारे वर्कशीट आप होते हैं, जैसे यहाँ बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट है, ये मैंने लास्ट टाइम सब कुछ समझाया, राइट? यस स्टूडेंट, हेलो, Yes, sir. ओके, Yes, sir. या सो लेट्स कंटिन्यू नाउ, दिस इज द फॉर्मेटिंग। यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग उन्होंने दिया था वो मैंने डायरेक्टली प्रैक्टिकली आपको बता दिया, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, जो चाहिए वो आप कर सकते हो, बॉर्डर, फिल कलर, दिस आर ऑल दैट थिंग वी आर गिविंग ओवर देयर, एक साथ बता। अभी उन्होंने ग्रुप में बताया, जैसे यहाँ पे होम टैब में ये फॉन्ट ग्रुप है, इसमें एक साथ वही फॉर्मेटिंग है, आप सिलेक्ट करोगे, बोल्ड करोगे, अंडरलाइन दोगे, फॉन्ट चेंज करोगे, वो एक साथ यहाँ पे भी दिया है, इट इज अ डायरेक्टली रिबिन में ग्रुप ऑप्शन दिया, फॉन्ट का ग्रुप, अलाइनमेंट का ग्रुप,
नंबर फॉर्मेटिंग का ग्रुप, स्टाइल्स का ग्रुप, इनबिल्ट स्टाइल भी है। अगर हम लोगों ने कुछ टेबल अगर ऐसे सिलेक्ट किया और वहां पे इनबिल्ट स्टाइल ले लिया, ओके, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ नाउ गो ऑन फॉर्मेट, देखो यहाँ स्टाइल्स है, जैसे जो भी टेबल का स्टाइल्स आप लोग लोगे वो स्टाइल्स उधर अप्लाई होगा, तो यहाँ वो स्टाइल्स के अंदर आपको वो फॉर्मेटिंग दिखाई देगी, उसको बोलते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, सेल स्टाइल दिया है, फॉर्मेट टेबल दिया है, ये सारे फॉर्म। अभी इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि मुझे अगर एक हाथ कॉलम इंसर्ट करना होगा, अगर कॉलम 1 के बाद एक कॉलम चाहिए, तो यह ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो एक कॉलम बढ़ेगा, ओके। अगर हम लोगों ने वो कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट टेबल कॉलम, तो वो कॉलम डिलीट होगा। रो बढ़ाना है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कर रहे हो और यहाँ इंसर्ट शीट रोज, तो एक रो बढ़ जाएगा। अगर डिलीट करना है तो डिलीट शीट रोज, तो डिलीट हो जाएगा। इस तरह हम लोग एक सेल, एक इंसर्ट सेल भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, कॉलम अबाव, लेफ्ट, राइट, जैसे चाहिए वैसे डिलीट शीट रोज कॉलम, और उसकी फॉर्मेटिंग में रो हाइट एंड ऑल। देखो अभी अगर मैंने यहाँ पे ये टेबल मैंने सिलेक्ट किया और फॉर्मेट में रो हाइट्स, आई वांट टू इंक्रीज द रो हाइट, तो 25, देखो 25 का हाइट इंक्रीज हुआ है। आफ्टर दैट कॉलम विड्थ, अगर मुझे कॉलम विड्थ चाहिए 45, कॉलम का विड्थ इंक्रीज कर रहा है। अगर ऑटो फिट करता, ऑटो फिट रो हाइट, तो जितना आपका फॉन्ट का साइज होगा उसके हिसाब से आपका रो हाइट ऑटो फिट होगा। वैसे ही ऑटो फिट कॉलम विड्थ, देखो ऑटोमेटिकली कॉलम के अंदर जितनी कंटेंट की वैल्यू है मैक्सिमम, यहाँ पे 1 लाख ज्यादा है तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट, दे आर एडजस्टिंग एंड ऑटो फिट दैट कॉलम। वैसे ही डिफॉल्ट विड्थ भी दे सकते हैं, डिफॉल्ट विड्थ इज 8.43, ओके। अगर आपने चेंज किया डिफॉल्ट विड्थ को तो डिफॉल्ट विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई कॉलम हिडन भी कर सकते हैं। अगर मैंने फॉर सिलेक्ट करके हिडन कॉलम्स, तो कॉलम हाइड हो गया, आप देख सकते हैं सी के बाद डी नहीं है, डायरेक्ट ई है। फिर उसको सिलेक्ट करके अगेन फॉर्मेट क्या करोगे, अनहाइड कॉलम, तो वापिस वो अनहाइड। रोज भी हाइड कर सकते हैं, सिलेक्ट करके फॉर्मेट हाइड रोज, तो रोज हाइड होता है। देखो 1 के बाद डायरेक्ट 3 आया हुआ, आप 1 एंड 3 सिलेक्ट करोगे और उसको हाइड ऑन करें, अनहाइड रोज, इस तरह। गॉट इट? यस स्टूडेंट, क्लियर? Yes, sir. या सो दिस इज द फॉन्ट ग्रुप या अलाइनमेंट ग्रुप, इससे अलग अलग ग्रुप दिए हुए और उस ग्रुप के बारे में उसने एक्सप्लेन किया, ओके। मर्ज एंड सेंटर भी आपको बताया हुआ है। नंबर ग्रुप के बारे में यहाँ पे भी डायरेक्टली देखो फॉर्मेटिंग है, नंबर, जो जो ग्रुप हम लोग ने नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग वहां से किया हुआ है, वही चीज यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और नंबर फॉर्मेटिंग में डेसिमल पॉइंट, अगर मोर नंबर फॉर्मेट किया तो मोर नंबर फॉर्मेट, अगेन वही सेम थिंग आ, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, सपोज यहाँ 1000 के लिए डेसिमल पॉइंट नहीं है और मैंने नंबर में क्लिक किया, देखो वो डेसिमल पॉइंट में आ गया। और अकाउंटिंग में चाहिए तो अकाउंटिंग, तो यहाँ से भी वो फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, या अदरवाइज गो ऑन फॉर्मेट सेल, वहां से भी आप पूरा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? सो ये हमारा होम टैब है, इसमें अभी कट कॉपी पेस्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई यूज दैट कट, कि यहाँ आ रहा हूँ और आई यूज द पेस्ट। क्या हो गया, कट मतलब वहां से टेक्स्ट को रिमूव करो और दूसरी जगह पे शिफ्ट करो, तो मैंने कट एंड पेस्ट कर दिया। वैसे ही सिलेक्ट कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट, तो कॉपी मतलब डुप्लीकेट हो गया, ओके। तो ये फॉर्मेटिंग, अगर मुझे कोई फॉर्मेटिंग कॉपी करना हो तो ये फॉर्मेट है, जस्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर, तो यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो वही फॉर्मेटिंग उसके लिए कॉपी हो, तो दैट इज मीन्स फॉर्मेट कॉपी। अगर मैंने ये सिलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे कर, तो वो फॉर्मेटिंग उसको अप्लाई हो जाए, दैट मीन्स फॉर्मेटिंग वी कैन कॉपी। जो भी फॉर्मेटिंग, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे विपिन को मैंने बोल्ड किया, इटालिक किया, अंडरलाइन किया, कलर दिया, और ये सेम फॉर्मेटिंग मुझे इसको देना है, सपोज D8 को देना है, तो आई सिलेक्ट दैट, क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर और जिसको देना है उसके ऊपर क्लिक, वो फॉर्मेटिंग यहाँ से लेके यहाँ पे आ, तो वो 0.25 क्यों आ, बिकॉज इट इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट, तो यहाँ पे भी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में चला और जो वैल्यू लिखा था वही वैल्यू दिखा। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, हेलो? Yes, sir.
सो दिस इज ऑल दैट थिंग फॉर्मेटिंग पार्ट। तो आपका ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया। अभी एक चीज खाली ऑटो सम बताना है, क्विक वे, जो यहाँ पे दिया हुआ है। फिल सीरीज भी आपका ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जितना दिया है उतना होम टैब में क्लियर कर रहा, ताकि नेक्स्ट टाइम से मुझे फॉर्मूला और वो फंक्शंस बताने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, चलो अभी शीट 3 में जस्ट 2 मिनट। सपोज मैंने कुछ नंबर लिखे 75, 85, 105, 95। अभी इसका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए यहाँ दिखाई दे रहा है तो ऑटो सम। तो वी कैन सी दैट ऑटो सम, एंड देन यहाँ पे डायरेक्टली इंटर किया, वो फॉर्मूला अपने आप आया। देखा आपने, ऑटो सम पे क्लिक किया, वो फॉर्मूला डायरेक्ट आया, इज इक्वल सम इन द ब्रैकेट A1:A4, मतलब A1 से लेके A4 तक जितने भी वैल्यू लिखे हैं उसकी टोटल। तो यहाँ पे टोटल डायरेक्ट आ रही है, तो उसको ऑटो सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो सम डायरेक्टली। वैसे एवरेज, इसके अंदर ऑटो सम के अंदर एवरेज भी। एवरेज मतलब क्या? जिसका टोटल निकाल के डिवाइड बाय कंटेंट, कितने हैं? 4 कंटेंट, 4 डिवाइड बाय 4। डिवाइड, देखो अभी 360 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ? 90। ठीक है, काउंटेड नंबर, मैक्सिमम नंबर, ये फंक्शन इनबिल्ट। हम लोग को सारे फंक्शंस देखने, लेकिन कुछ फंक्शन रेडीमेड इधर उन्होंने दिए हैं। अगर ज्यादा फंक्शन देखने तो मोर फंक्शन में जाके फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसके अंदर जाके आप खुद फंक्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद आपका आता है फिल सीरीज। तो फिल सीरीज ऑलरेडी हो चुका है, मैंने बोला था 1 2 लिखा हुआ है। अगर आपने वो सिलेक्ट किया और फिल के अंदर किया और डाउन किया तो आपको फिल 1 1 आ गया। लेकिन अगर आप लोगों ने फिल सीरीज के अंदर गए और वहां पे कॉलम्स के अंदर 1 और स्टॉप वैल्यू लिखा उधर 15, तो आपको ओके करोगे तो आपको देखो 1 to 15 स्टॉप वैल्यू में एक से इंक्रीमेंट। कहाँ पे गए थे हम लोग? फिल के अंदर सीरीज में। स्टेप वैल्यू 1 है, लीनियर है, और स्टॉप वैल्यू मैंने 50 दिया, 15 दिया था, 20 दिया, तो 20 में वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन आगे सेल सिलेक्ट नहीं है, इसलिए वो सेल सिलेक्ट नहीं, तो वो वैल्यू दिखाई नहीं देगी। इज इट क्लियर? फिल सीरीज तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या सबसे जो अच्छा वे यहाँ से आप 1 सपोज 5, तो 1 और 5 इसके बीच में 4 का गैप है, और डायरेक्ट दोनों सेल सिलेक्ट करो और ड्रैग करो, अपने आप वो सीरीज दिखाई देगी। क्लियर? यस स्टूडेंट, हेलो? Yes. Yes, ओके, sir. सो दैट इज फिल सीरीज। आगे क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने जो भी फॉर्मेटिंग दिया होगा, अगर सिलेक्ट करके आप क्लियर फॉर्मेटिंग करते हो तो वो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। कंटेंट क्लियर करना है तो कंटेंट क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्लियर किया, क्लियर ऑल, तो पूरा डेटा क्लियर हो गया। फॉर्मेट क्लियर किया तो पूरा फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया। कंटेंट क्लियर किया तो ओनली कंटेंट क्लियर हो जाएगा, फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं होगा। कंटेंट तो यहाँ वापस लिखेंगे, वही फॉर्मेट में दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने क्लियर ऑल किया, क्लियर ऑल भी कर सकते। दिस इज ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग हम लोग का ऑप्शन डेटा के अंदर आने वाला है, तो हम लोग वहां पे ही लेंगे। पहले हम लोग फाइंडिंग देखते हैं। फाइंड, फाइंड मतलब फाइंड द टेक्स्ट। अगर मुझे कोई टेक्स्ट फाइंड करना है तो कंट्रोल F या फाइंड, आप जो भी नंबर, सपोज मुझे 1000 फाइंड कर, एंटर करो, देखो 1000 जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ पे वो 1000 वैल्यू है, मतलब टेक्स्ट वैल्यू, नॉट ए नॉर्मल टेक्स्ट वैल्यू। अगर उसको रिप्लेस करना है 1000 को 5000 से, तो 5000 से रिप्लेस कर सकते हैं वो 1000 का 5000। और गो टू कमांड, कोई भी सेल में मुझे डायरेक्टली इधर भी जाना है, तो सपोज मुझे जाना है A25, तो A25 के इधर डायरेक्ट में जंप कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं गो टू। दिस इज योर होम टैब। हम लोगों ने होम टैब क्लियर कर लिया, और आपके इधर जितने भी जो भी चीजें आपको पूछी थी वो सारी चीजें मैंने क्लियर की थी। आप फिल सीरीज भी देख सकते हो आपके बुक में। एक पार्ट रह गया है, कस्टमाइज लिस्ट। खुद की लिस्ट बनाने, जैसे जनवरी फरवरी होता है, मंडे ट्यूसडे होता है, तो कस्टमाइज लिस्ट कैसे बनाते हैं, एक ऑप्शन आपके अंदर दिया हुआ है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्लिक ऑन फाइल टैब, गो ऑन ऑप्शंस, ओके। उसके बाद उनको बताया हुआ एडवांस, एडवांस में जाके ऑप्शन में एडवांस में एडिट कस्टम लिस्ट, एडवांस में जाना है। और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हम लोग को एडिट कस्टम लिस्ट दिया हुआ है, कहाँ पे है वो? एडिट कस्टम लिस्ट,
एडवांस किधर है ऑप्शंस अवेलेबल? शो टूलबार, एडिट कस्टम लिस्ट, एडवांस में दिखाई नहीं दे रहा है। एक एडिंग्स में है क्या देखो? नहीं, एडिंग्स में तो हमारा सॉल्वर वगैरह के लिए यूज होने वाला है। कस्टमाइज रिव्यूम नहीं, एडवांस में ही आना चाहिए। वेब ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन है, कैलकुलेटिंग वर्कबुक है, फॉर्मूला है, डिस्प्ले है, कस्टमाइज लिस्ट, चार्ट है, इमेज है, कट कॉपी पेस्ट है, एडिटिंग ऑप्शन यहाँ पे कुछ नहीं है। एडिट कस्टम लिस्ट ऑप्शन है क्या अवेलेबल? नहीं है ना, होना चाहिए। एक मिनट हम लोग देखते हैं। एडिट कस्टम लिस्ट, फाइल के अंदर, ऑप्शन के अंदर, जनरल ऑप्शंस में नहीं है, फॉर्मूला में नहीं है, प्रूफिंग में नहीं है, ऑटो करेक्ट में नहीं है, सेव में नहीं है, लैंग्वेज में नहीं है, एडवांस में ही आना चाहिए। चलो उन्होंने किधर दिया है देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट एडिट कस्टम लिस्ट ही दिया हुआ, इट इज ओल्ड वन। अगेन ऐड बटन, न्यू लिस्ट आना चाहिए था। फाइल टैब, ऑप्शंस, एडवांस, एडिट कस्टम लिस्ट, फाइल टैब, ऑप्शंस, एडवांस। यहाँ पे अपना खुद का लिस्ट बना सकते, वो ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन वो, हाँ यस, यहाँ पे देखो एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करोगे, देन आपका खुद का आप कस्टम लिस्ट ऐड करोगे और वहां पे लिखोगे। सपोज मेरे फ्रेंड्स के नाम है, ओके, सपोज मैं लिख रहा हूँ विपिन, ओके, कॉमा साची, कॉमा पूनम, कॉमा माही, ओके, एंड क्लिक ऑन ओके। न्यू लिस्ट रेडी की, इसको नाम भी इंपोर्टेड सेल लिस्ट हम लोग नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ओके अगर किया तो उससे क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पे बिपिन लिखा और मैंने ड्रैग किया, ऑटोमेटिकली देखो साची पूनम माही लिस्ट रेडी आ गई। इसका मतलब हम लोग क्या बना रहे हैं? खुद की लिस्ट रेडी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसको बोलते हैं कस्टमाइज लिस्ट। तो एक कस्टमाइज लिस्ट का ऑप्शन आपके इधर था, इसलिए मैंने वो दिखा दिया। So that we can use the as a custom list, your subject name you can use and then drag it, ये कर सकते हो। ऑटो फिल सीरीज ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो ऑटो फिल सीरीज का ऑप्शन भी आपके अंदर दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। ऑटो कंप्लीट, इसी का मतलब ऑटो कंप्लीट का मतलब या ऑटो करेक्ट का मतलब क्या है वो बता देता हूँ। ऑटो कंप्लीट मतलब जैसे मैं बी वापिस लिखता हूँ, अभी यहाँ पे मैं विपिन प्रकाश वैद, ओके लिखा, अभी मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, देखो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट रिपीट हो रहा है। अगर मैंने एंटर किया तो वो टेक्स्ट ऑटो कंप्लीट हो, ओके, दिस इज ऑटो कंप्लीट। अगर नहीं चाहिए तो आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने बी आई के बाद दूसरा कुछ नाम लिख दिया तो वो चेंज होगा, ओके। जैसे हम लोग ने अमोल लिखा और वापिस अमोल लिखा, वो रिपीट हो रहा है, लेकिन अमोल के बाद और कुछ लिखा वो चेंज हो, दैट इज द टेक्स्ट ऑटो कंप्लीट होता है। ऑटो करेक्ट या ऑटो कंप्लीट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट का मतलब ये होता है कि मैं जनवरी लिखता हूँ तो अपने आप टेक्स्ट दिखाता है, कोई कोई टेक्स्ट इसमें ऑटो करेक्ट दिखाता है, तो उसको अगर स्पेस बार करेंगे तो भी वो ऑटो करेक्ट हो जाता है, उसको ऑटो करेक्ट। उसके अंदर ऑप्शंस में जाना पड़ के तो करना पड़ता है, ऑटो करेक्ट के ऑप्शंस है, ओके। वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने एक टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ ऑटोमेटिकली दिखाई दे, उसको ऑटो करेक्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। कॉपी डेटा, पेस्ट डेटा भी हमारा हो चुका है। पेस्ट स्पेशल एक ऑप्शन है जिसमें हम लोग फॉर्मूला के साथ में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी टाइम हो चुका है, हम लोग अटेंडेंस लेते हैं और नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू दिस पार्ट, फंक्शन इन एक्सेल एंड ऑल दैट। तो आज खाली एक फंक्शंस आपको कैसे यूज करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे अभी जैसे एक स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे इज इक्वल SQRT इन द ब्रैकेट, अगर मैंने लिखा 144 ब्रैकेट क्लोज एंटर, स्क्वायर रूट मिला मुझे डायरेक्टली 12। देखो इनबिल्ड फंक्शन, तो हम लोग को थोड़े फंक्शंस के बारे में जानना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और उसमें से 7 मार्क्स के लिए आपको फंक्शन, जितना भी पार्ट अभी तक हुआ है वो थ्योरी है, आपको कुछ भी पूछने वाले नहीं है, लेकिन वो बेसिक पार्ट्स,
वो सब तक एक्सेल में समझ में नहीं आता है, तब तक हम लोग आगे के पार्ट्स कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसीलिए जिसको एक्सेल मालूम नहीं था, इसलिए वो बेसिक पार्ट्स बताने के लिए। इज इट क्लियर? अंडू रीडू कमांड आपको पता ही है, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, कुछ गलत हुआ तो। चलो, नाउ विल टेक द अटेंडेंस एंड देन विल कंटिन्यू। आपका लेक्चर्स खत्म होने को आया है, इसके लिए अटेंडेंस पहले ले लेते। चलो, अटेंडेंस लेना है, वो भी मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है। देखो, मुझे एक्सेल बहुत इजी गिर जाता है, ताकि आपका मेंटेनेंस करने के लिए, आपके अटेंडेंस का मेंटेनेंस किस आगे, देखो लास्ट टाइम का अटेंडेंस, ऐसे करके मुझे इजीली मेंटेन कर सकता हूँ। राइटली देखो, मैं हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे 21/11/2020 लिख रहा हूँ, और अटेंडेंस बोलो 1 to 10 7 अटेंडेंस, रोल नंबर 1 to 10। Sir, 5. हेलो, 7 5 7, हेलो 11 to 20, Sir 12 Sir, 15. 12 15, 21 to 30, 22. 24. 22 24, next Yes. 31 to 40, 36. 32, 36 40, next 41 to 50, 42 45. 43. 45 43, So 41. 41. Okay, next 51 to 60, सर मेरे नाम 52. के बाजू, सर मेरे नाम के बाजू में फोन नंबर गलत लिखा है। हाँ, वो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, वो शीट वाइज से 52 शेक्सर 58 शेक्सर से जैसे आया है वैसे रखा है, आप शेक्सर के बाद 52 अपडेट। 52, okay. 58 52 58, आगे नेक्स्ट 61 to 70, 61, 61. आगे 61 to 70, 71 to 80, 70, 75. 70 75, आगे 70 80 80, Yes, 80. 81 to next 90, 91 to 100, 94 94 Okay. Anyone others? Now 101 to last. Hello, no one? हो गया? बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइंस होते हैं अभी, उसका मतलब उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। बाद में कुछ भी पूछेंगे, मैं कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग आपको फिजिकली देख नहीं रहे, लेकिन आप कर रहे हो ऐसा एज्यूम करके, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऐसे करके, हम लोग उनको ऑनलाइन सर्व कर रहे हैं। तो वो बेटर है, अभी जब तक कॉलेज चालू नहीं होता तब तक तो ये प्रोसेस आपका, तब तक एग्जाम आ जाएगा, उसके पहले ही आपको प्रिपरेशन होना जरूरी है। चलो, थैंक यू। यस स्टूडेंट, थैंक यू। Thank you, sir.